Hello friends, my name is Khushbu Sahu. Welcome to my channel Becoming Nurse. Today I am going to tell you about patient positioning. Introduction of positioning. Positioning is defined as placing the patient in good body alignment as needed therapeutically. Positioning को डिफाइन किया गया है जिसमें थेरेप्यूटिक नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को बॉडी अलाइनमेंट प्रोवाइड की जाती है. देन डेफिनेशन. Positioning is defined as placing the person in proper body alignment for the purpose of preventive, promotive, curative and rehabilitative aspect of health. According to definition, patient को proper body alignment provide की जाती है जिसका मेन पर्पस है फर्स्ट प्रिवेंटिव, डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को एक ही पोजीशन में रखा जाए तो पेशेंट के बॉडी में बेड शोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आई टेल यू फर्दर व्हाट इज़ बेड शोर. देन प्रमोटिव, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जब हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है जिससे पेशेंट का हेल्थ प्रमोट होता है. देन क्यूरेटिव, एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट से क्योर करने के लिए. एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, पेशेंट के हेल्थ को पहली वाली स्थिति में लाने के लिए. According to second definition, moving a patient into a specific position or posture to facilitate examination, surgery or for therapeutic purpose. According to second definition, पेशेंट को स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड की जाती है थेरेप्यूटिक पर्पस के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल, फिजिकल एग्जामिनेशन और सर्जरी प्रोवाइड करने के लिए. देन after this we will see purpose of positioning. First, to promote comfort. Comfort means is a state of free from pain, tension and anxiety. Second, to prevent discomfort. Discomfort means discomfort is defined as want of comfort arising due to pain. Third, to improve circulation. Fourth, to carry out medical and surgical investigation. Fifth, to relieve pressure on various body parts. Sixth, to prevent bed sore or pressure sore. I want to tell you what is bed sore. Bed sore is also known pressure sore, is an injury to the skin and underlying tissues in which soft tissue is compressed between a bony prominence and an external surface for a prolonged period. Then, to conduct delivery or labor and to provide proper body alignment. Next, we will see principle of positioning. First, maintain good body mechanism. बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. सेकंड, सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग. किसी भी पोजीशन को प्रोवाइड करने का एक सिस्टमेटिक वे होता है. थर्ड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू. पेशेंट के बॉडी और पेशेंट के पोजीशन के बीच कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है. फोर्थ, फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. पेशेंट को जब हम पोजीशन प्रोवाइड करते हैं तो कई सेफ्टी मेजर्स का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट बेड में सुपाइन पोजीशन पे है तो उसको बेड से फॉल होने से प्रिवेंट करने के लिए हम साइड रेल्स का यूज़ करते हैं. फिफ्थ, यूजिंग अ राइट टेक्निक एट राइट टाइम. राइट टाइम में ही राइट पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए. देन टाइप्स ऑफ पोजीशंस. First, supine position. Second, prone position. Third, lateral position. Fourth, Sims position. Fifth, Fowler position. There are two types of Fowler position. First, semi-Fowler position and second, high Fowler position. 6, knee chest position. 7, dorsal recumbent position. 8, Trendelenburg position. 9, lithotomy position. 10, sitting position. 11, standing position. Next,
Preliminary assessment. फर्स्ट, पेशेंट जनरल कंडीशन. पेशेंट का जनरल कंडीशन चेक करनी है. फिजिशियन ऑर्डर चेक करनी है. असेस सेल्फ केयर एबिलिटी. पेशेंट का सेल्फ केयर एबिलिटी चेक करनी है. हम जो भी पेशेंट को पोजीशन इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो खुद से फॉलो कर सकता है या नहीं. देन अरेंज द कंफर्ट डिवाइस नियर द बेड साइड. I have shown some comfort devices here. Apart from this, there are many other comfort devices. So, comfort devices का यूज़ किया जाता है पोजीशन जब प्रोवाइड करते हैं तब. Identify the deformed extremities. Support the immobilized area during position. Then, preparation of the articles. First, clean, dry, firm bed. Second, different type of mattress. डिफरेंट टाइप मैट्रेस यूज़ किया जाता है जैसे कि एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस. थर्ड, कंफर्ट डिवाइसेस सच एज पिलो, ट्रॉकेंटर रोज, हैंड रोज, बैक रेस्ट, नी रेस्ट, फुटबोर्ड. इट्स आर्टिकल्स आर यूज्ड पर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ पोजीशन. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस. फुटबोर्ड, पिलोज, air and water mattress, hand rows, knee rest, back rest, side rails. Then the next we will see position. First, supine position. First, the patient lies on his back with his head and shoulders are slightly elevated. Patient है वो अपने बैक साइड से लेटा हुआ है and पेशेंट का हेड एंड शोल्डर्स है वो स्लाइटली एलिवेटेड है. वन पिलो इज गिवन अंडर द हेड एंड वन स्मॉल पिलो इज प्लेस्ड अंडर द नी. अंडर द हेड प्लेस करते हैं वन पिलो एंड दूसरा पिलो अंडर द नी प्लेस करते हैं. देन पिलो अंडर द लोअर लेग टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन हील्स. फुट बोर्ड सपोर्ट फीट टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप. यहाँ पे कंफर्ट डिवाइस फुट बोर्ड का यूज़ किया जा रहा है टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप. एंड जो पिक्चर में आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो है ट्रॉकेंटर रोज, वन टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइस यूज्ड टू कीप्स पेशेंट हिप अलाइन. देन इंडिकेशंस. इंडिकेशन मीन्स पेशेंट हु आर गिवन दिस टाइप ऑफ पोजिशन. फर्स्ट, फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड, द यूजुअल पोजीशन यूज्ड बाय द पेशेंट. ये एक ऐसा पोजीशन है जो कॉमन यूज़ किया जाता है. थर्ड, टू प्रमोट कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए. फोर्थ, टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट करने के लिए. फिफ्थ, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन असेसमेंट में यूज़ किया जाता है सुपाइन पोजीशन. सिक्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट, हेड, ब्रेस्ट, neck, anterior thorax, abdomen, extremities. Then contraindication. Contraindication means patient who are not given this type of position. First, client with breathing difficulty or dyspnea. Client with neurological condition or spinal surgery. ऐसे patient जिनको neurological कोई प्रॉब्लम्स होती है उनको सुपाइन पोजीशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है. थर्ड, क्लाइंट विद बर्न्ड आर इंजरी ऑन बैक. ऐसे पेशेंट जिनका बैक जला हुआ हो या इंजरी हुई हो किसी टाइप की उनको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है. फोर्थ, क्लाइंट विद सर्जरी ऑन बैक. सर्जरी ऐसे पेशेंट जिनके बैक में सर्जरी हुई हो उनको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड नहीं की जाती है. पोजीशन सेकेंड, प्रॉन पोजीशन. A patient lies flat on abdomen, head turned to side away. इसमें पेशेंट है वो अपने एब्डोमेन साइड से लेटा हुआ है. पेशेंट का हेड है वो वन साइडेड टर्न्ड है. वन सॉफ्ट पिलो इज गिवन अंडर द हेड एंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट पिलो इज गिवन अंडर द एंकल टू कीप टॉस फ्रॉम टचिंग द बेड. प्रॉन पोजिशन में कंफर्ट डिवाइस एयर मैट्रेस का यूज़ किया गया है. This comfort device is used on prone position to help in distribution of equal pressure on the body. Next, indication.
फर्स्ट, पेशेंट हैविंग इंजरी एंड बर्न ऑन हिज बैक। ऐसे पेशेंट जिनके बैक साइड बर्न है या इंजरी है उनको प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, टू रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। Abdominal distension means accumulation of the air or fluid in abdomen, that is called abdominal distension. Abdominal distension से relief provide करने के लिए prone position दिया जाता है। Third, to prevent bed sore. I have already told you what is bed sore. Fourth, assist the hip joint. Fifth, position the client with injury, burn and surgery of the back. Sixth, give comfort. Then contraindication. First, client with cardiovascular disease. ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो, प्रॉब्लम्स हो, उनको प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। सेकेंड, क्लाइंट विथ रेस्पिरेटरी डिसीज़। ऐसे पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उनको प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। थर्ड, क्लाइंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट को भी प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। Then position third, lateral position. First, a client lies on the side with weight on hip and shoulders. Patient है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड ले सकता है lateral position में, and patient का पूरा body weight होता है वो hip and shoulder पर होता है। Second, the upper leg is flexed more than the lower leg. Suppose patient right lateral position में है तो patient का लेफ्ट लेग है वो राइट लेग के कंपैरिजन में अपर रहेगा। थर्ड, अ पिलो इज गिवन अंडर द हेड, बैक एंड फ्रंट टू सपोर्ट द आर्म्स एंड एब्डोमेन। अ स्मॉल पिलो इज गिवन इन बिटवीन द नीज। फिफ्थ, कंफर्ट डिवाइसेस। अ पिलो इज यूज्ड टू प्रिवेंट रबिंग द लेग। इसमें कंफर्ट डिवाइस पिलो का यूज किया जा रहा है। देन इंडिकेशन। ऐसे पेशेंट जिनको लेटरल पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट, कार्डियक इशू। ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियक इशूज़ होते हैं उनको लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। लेटरल पोजीशन रिलैक्सिंग पोजीशन भी कहलाता है। सेकंड, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वाले पेशेंट को लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। थर्ड, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस। फोर्थ, इट इज़ अ रिलैक्सिंग पोजीशन। फिफ्थ, यूज़ फॉर चेंज द अनदर पोजिशन। दूसरे पोजिशन चेंज करने के लिए हम लेटरल पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। सिक्स, लेटरल पोजिशन इज यूज्ड फॉर गिविंग एनीमा। एनीमा मीन्स इट इज़ लिक्विड ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिलीव सीवियर कॉन्स्टिपेशन थ्रू द रेक्टम। नेक्स्ट, गिविंग बैक केयर। एट, यूज्ड फॉर गिविंग कोलोनिक इरिगेशन। Colonic irrigation means colon cleansing, flushing the colon with fluid to remove waste. 9. Used for examination of perineum or rectum. Perineum and rectum के examination के लिए भी lateral position provide की जाती है। Perineum means it is a diamond shaped area between the anus and vagina. 10. Inserting suppositories. सपोजिटरी इंसर्ट करने के लिए हम लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। देन 11, इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए भी हम लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्लाइंट विथ अनस्टेबल पेल्विक फ्रैक्चर। देन पोजीशन 4, सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी प्रॉन पोजीशन। फर्स्ट, सिम्स पोजीशन इज सिमिलर टू द लेटरल पोजीशन। सिम्स पोजीशन होता है वो लेटरल पोजीशन जैसा ही होता है। सेकेंड, इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन आइदर द राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसमें पेशेंट है वो या तो लेफ्ट साइड भी लेट सकता है या राइट साइड भी। देन थर्ड, द लोअर आर्म बिहाइंड द बॉडी एंड अपर आर्म इज बेंट एट द शोल्डर एंड एल्बो। The knee are both bent with the uppermost leg more actually bent. Suppose पेशेंट राइट साइड लेटा हुआ है, राइट सिम्स पोजीशन में है, तो पेशेंट का जो राइट हैंड रहेगा वो बिहाइंड द बॉडी रहेगा
इन पेशेंट का जो लेफ्ट हैंड है वो बेंट होकर शोल्डर तक अपर की तरफ रहेगा एंड पेशेंट का जो दोनों नीज है वो बेंट रहेगा एंड पेशेंट का लेफ्ट लेग राइट लेग के कंपैरिजन में अपर साइड रहेगा. देन इंडिकेशन. फर्स्ट, दिस पोजिशन इज़ यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट. ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं उनको सेमी प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन. वेजाइना एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए सेमी प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है. यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन इन एंटीनेटल एक्सरसाइज. एंटीनेटल आर प्रीनेटल मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन. देन फोर्थ, administration of enema and suppository. Suppository means it is a solid and semi-solid form insertion into the body cavities and exerted local or systemic effect. Then position for sigmoidoscopy and protoscopy. Sigmoidoscopy means it is a electronic device. It is used for physical examination of sigmoid colon, which is the part of large intestine. And protoscopy means it is a small lighted tube called protoscopy. It is used for physical examination of the rectum and anus. Then contraindication. Contraindication means ऐसे पेशेंट जिनको सेमी प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है. Patient with deformities of the hip or knee may be unable to assume this position. Next, position 5, Fowler position. It is a sitting position in which the head is elevated at 45 degree or 90 degree angle. इसमें पेशेंट है वो सिटिंग पोजीशन में रहता है. हेड ऑफ द बेड है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री एंगल तक एलिवेटेड रहता है. Then second, and the client knees are slightly elevated, avoiding pressure on the popliteal vessels. Behind the knee popliteal vessels present होते हैं जिसके कारण प्रेशर अवॉइड करने के लिए नीज को स्लाइटली एलिवेट रखा जाता है. थर्ड, बैक रेस्ट एंड 2 पिलो आर यूज्ड फॉर द बैक एंड हेड. इसमें कंफर्ट डिवाइस बैक रेस्ट का यूज़ किया जाता है एंड पिलो का भी यूज़ किया जाता है. फोर्थ, pillows can be used to maintain natural alignment of the hand, wrist and forearms. Then there are two types of Fowler position. First, semi-Fowler position. Second, high Fowler position. First, semi-Fowler position. In this, head of the bed is elevated to 30 degree to 45 degree angle. हेड ऑफ द बेड है वो 30 to 45 डिग्री एंगल तक एलिवेटेड रहता है. देन सेकेंड, फाउलर पोजिशन. हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड टू 80 to 90 डिग्री एंगल. हेड ऑफ द बेड है वो 80 to 90 डिग्री एंगल तक एलिवेटेड रहता है. नेक्स्ट, इंडिकेशन. फर्स्ट, टू प्रमोट कंफर्ट. सेकेंड, टू प्रिवेंट डिसकंफर्ट. थर्ड, टू रिलीव डिस्पनिया. डिस्पनिया इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. फोर्थ, to improve circulation. Fifth, to relax the muscles of abdomen, back and thigh. Sixth, to relieve tension on abdominal stretches. Abdominal stretches के कारण होने वाले डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट करने के लिए फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है. देन कॉन्ट्राइंडिकेशन. नॉट टू बी यूज्ड फॉर आफ्टर ब्रेन एंड स्पाइनल सर्जरी. नेक्स्ट वन इज पोजीशन 6, नी चेस्ट पोजीशन. फर्स्ट, The patient rests on the knee and the chest. इसमें पेशेंट का बॉडी वेट है वो पूरा उसके नी और चेस्ट पर रहता है. सेकेंड, द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल टू द हिप विथ बैक स्ट्रेट, द आर्म्स अबव द हेड. पेशेंट बॉडी है वो 90 डिग्री एंगल पर होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. पेशेंट का हिप एंड बैक है वो स्ट्रेट होता है एंड हैंड है वो हेड से आगे की तरफ होता है. थर्ड, एंड द हेड टर्न टू वन साइड. पेशेंट का हेड है वो वन साइडेड टर्न्ड है. द एब्डोमिनल रिमेन्स अनसपोर्टेड. पेशेंट का एब्डोमिनल एरिया अनसपोर्टेड होता है. नेक्स्ट, इंडिकेशन. फर्स्ट, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड वेजाइना. रेक्टम एंड वेजाइना के एग्जामिनेशन में भी यूज़ किया जाता है नी चेस्ट पोजिशन. सेकेंड, सिग्मोइडोस्कोपी. थर्ड, as an exercise
and postpartum client. Postpartum client means after delivery patient. Fourth, used in first aid treatment in cord prolapse. Cord prolapse means is a complication that occurs during delivery of the child. In these conditions, the umbilical cord drops through the cervix into the vagina ahead of the baby. Then contraindication. फर्स्ट, क्लाइंट विद कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम. ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उनको नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड नहीं की जाती है. सेकेंड, क्लाइंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ऐसे पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है. थर्ड, क्लाइंट विद आर्थराइटिस और अदर जॉइंट डिफॉर्मिटी may be unable to lie in this position. Then position 7, dorsal recumbent position. Patient lies on back, knees fully flexed, thighs flexed and externally rotated, feet flat on the bed. इसमें पेशेंट है वो बैक साइड से लेटा हुआ है जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं. देन नीज और थाइज है फुली फ्लेक्स्ड हैं, लेग सेपरेटेड होते हैं. देन इंडिकेशन. फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर कैथेटराइजेशन. कैथेटराइजेशन में यूज़ किया जाता है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन. सेकेंड, इट इज़ यूज्ड फॉर वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन. थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर वेजाइनल ऑपरेशन. फोर्थ, असेसमेंट ऑफ हेड, नेक, लंग्स, thorax. देन कॉन्ट्राइंडिकेशन. फर्स्ट, क्लाइंट विद ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी. ऐसे पेशेंट जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो उनको डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन प्रोवाइड नहीं की जाती है. सेकेंड, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. थर्ड, क्लाइंट आफ्टर सर्जरी ऑन हिज बैक. देन नेक्स्ट position 8, Trendelenburg position. First, in this position the patient lies on the back with the head low. पेशेंट है वो अपने बैक साइड से लेटा हुआ है जैसा डायग्राम में दिख रहा है एंड पेशेंट का जो हेड है वो नीचे की तरफ है. द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड टू 45 डिग्री एंगल. फुट ऑफ द बेड है वो 45 डिग्री एंगल तक ऊपर की तरफ है. Then indication. First, this position is used for vaginal surgery. This position is used for rectal examination. Third, this position is used for vaginal examination. Fourth, this position is used for placenta previa. Placenta previa means is a condition in which the placenta partially or wholly blocks the neck of the uterus. The neck of the uterus is also called cervix, so interfering with normal delivery of a baby. Then fifth, this position is used during operation on the pelvic organ. 6. Patient with deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis means is condition in which a blood clot form in vein, usually in the leg. Blood clotting is also called thrombus. Then contraindication. First, patient in whom increased intracranial pressure ICP is to be avoided. For example, neurosurgery, aneurysm and eye surgery. ऐसे पेशेंट जिनका ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज्ड रहता है उनको ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है. फॉर एग्जांपल न्यूरोसर्जरी वाले पेशेंट, एन्यूरिज्म वाले पेशेंट एंड आई सर्जरी वाले पेशेंट. ICP, intracranial pressure, means is the pressure exerted by fluids such as CSF, cerebrospinal fluid, inside the skull and on the brain tissues. And aneurysm means an aneurysm is the enlargement of an artery caused by weakness in the arterial wall, result in internal bleeding and stroke. Then second one is distended abdomen. Third, esophageal surgery. Next, position 9, lithotomy position. The client lies supine with hip flexed, the legs are separated and thighs are flexed. The patient buttocks are kept at the edge of the table and legs are supported by straps. इसमें पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ रहता है. पेशेंट का हिप्स
एंड थाइज है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होते हैं, लेग सेपरेटेड होते हैं, एंड पेशेंट बटक्स होता है वो एड्ज ऑफ द टेबल प्रेजेंट होता है, एंड जो पेशेंट का लेग है वो स्ट्रप्स के द्वारा सपोर्टेड रहता है। स्ट्रप्स मीन्स इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच सपोर्टेड टू द लेग इन लिथोटोमी पोजिशन। आपको डायग्राम में जो नी के पास ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है स्ट्रप्स। देन नेक्स्ट इंडिकेशन, फर्स्ट फॉर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड लिथोटोमी पोजिशन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ सर्जरी एंड सर्जरी। Third, for vaginal examination. Fourth, this position is given during gynecological examination, treatment and operation on genitourinary system. Then contraindication. First, femoral nerve damage due to actually flexed thighs. लंबे समय तक थाई के फ्लेक्स्ड होने के कारण फिमोरल नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, हिप डिसलोकेशन आर फ्रैक्चर एज अ रिजल्ट फॉल्टी स्ट्रप्स। फॉल्टी स्ट्रप्स यूज़ करने के कारण हिप डिसलोकेशन और फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। थर्ड, सीवियर बैकेज कॉज्ड बाय टू हाई स्ट्रप्स। बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रप्स होने के कारण सीवियर बैक पेन ऑकर हो सकता है। फोर्थ, ऑस्टियोआर्थराइटिस आर स्टफ हिप्स ड्यू टू रफ हैंडलिंग। Osteoarthritis means common form of arthritis also called degenerative or joint disease. Next, position 10, sitting position. The client sits on the chair or on the side of the table or examination table and the head is elevated. इसमें पेशेंट है वो चेयर में बैठा हुआ रहता है, हेड एलिवेटेड रहता है। Then indication, it allows visualization of the upper body. अपर बॉडी पार्ट को विजुअलाइज करने के लिए सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड टू असेस द वाइटल साइन। वाइटल साइन असेसमेंट में भी यूज़ किया जाता है सिटिंग पोजीशन। थर्ड, इट इज़ यूज्ड टू असेसमेंट द हेड, नेक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर thorax, lungs, heart, breast and upper extremities. Then contraindication, client with recent spinal surgery. रिसेंट स्पाइनल सर्जरी वाले पेशेंट को सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सेकेंड, क्लाइंट विथ रिब फ्रैक्चर। थर्ड, क्लाइंट विथ थोरेसिक सर्जरीज। नेक्स्ट, पोजीशन 11, स्टैंडिंग पोजीशन। द क्लाइंट स्टैंड इरेक्ट। देन इंडिकेशन, टू असेस पोस्चर। पेशेंट के बॉडी पोस्चर को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड, दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर क्लाइंट बैलेंस। थर्ड, दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन। फोर्थ, असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। Then contraindication, this position should not be used for clients who are weak, dizzy or prone to fall. ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं उनको स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। Thank you guys for watching this video.